শর্মিষ্ঠা নজর রাখিস তো ইনসাফিসিয়েন্ট স্পেস টেস্টের জন্য মনে হচ্ছে বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে this is the part 5th ভিডিও। দেখ একটা জিনিস বোঝ, ধর একটা নিউক্লিয়াস আছে, সেলের নিউক্লিয়াসটা, সাপোজ আ নিউক্লিয়াস ইজ দেয়ার। The nucleus generally contains suppose a nucleus is there, the nucleus generally contains chromatin thread inside it. We have understood that. We have also understood that the chromatin thread forms from the DNA. We have also understood that when the cell is supposed to divide, in the nucleus, the chromatin thread gets converted into homologous chromosomes, staying in pairs. Up to this much I have explained. And in the homologous chromosomes, or in the chromosomes, this is known as centromere, this is known as the chromatid, this is known as the centromere, and this is known as the chromatid. Two arms, right? This was explained. Also it was explained that these are the loci where the genes of the DNA stay. Yes or no? From here the characters are determined, and hence they create, as because the two copies of the same character or same gene stays, and they form alleles like boro t choto t, or boro r choto r, or boro t or choto t, whatever stays, it depends on the human being who is carrying the chromosome. Yes or no? I have explained to you genotype, phenotype, all these things I have explained. Now just try to understand one thing, that let me rub this thing, this I don't require now. Just understand that this happens during the cell division. Now, how it will be divided? If it is mitosis, means if it is equational division occurring inside your body, then your genetic constitution should remain same. Let us also take some alleles. Let there be capital T, small t here. Let here be capital R here. Let there be small b, let there be small a and small a here. Sir, what are these alleles? Anything. Means I am just taking arbitrarily, just to understand. Okay. Let there be small a, capital A here. So that means they carry capital T, small t, capital R, small a, and oh, I have taken A, no? Let us take M, small m, capital M, and small m, capital M. So these may be the alleles of some character, some undefined character. I am not trying to say, maybe here those, this, that, whatever it is. Now when mitosis will occur, then what basically happens is two new cells are formed which carries the same thing. Means I am just doing with 3 chromosomes. In human, the same thing is there in 46 chromosomes, and in 46 chromosomes in different loci, the characters are there. I hope that you understand. So, same thing will come, same genes will come. The same phone camera. It's fine, no going on video. So same thing will come. Means it is equational division, this is occurring in your body. So this type of division will occur and the same thing will come. Is this clear to you? Is this understood? No problem in understanding this? I hope you have understood. So how does this happen? By DNA replication. Actually what happens, before becoming those two, this becomes like this. If you really want to know, of this chromosome, two homologous, see, like this forms.
sister chromatids formed like this. Means if this is chromosome number 1 and if this is chromosome number 1 dash, suppose, okay, this chromosome number 1 will only become 2 chromosomes, means this is chromosome number 1 now, and the chromosome number 1 dash, the homologous chromosome will remain like this. Are you getting my point? So you should remember this, it will help you in biology in higher classes. No, sorry, it will be capital T only, it will be R, it will be R, it will be small t, it will be small t, it will be R, it will be R. Just see with one chromosome only. What basically is happening is that if I take this chromosome into account, the chromosome is getting replicated and a copy is taken. तब ना क्या है, बीच में से डिवाइड हो जाता है, बीच में से ऐसे खींच के ब्रेक हो जाता है, वो करता है स्पिंडल फाइबर बोल के मतलब सब्सटेंस, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आके अटकता है और उसको खींच के अलग कर देता है। तो खींच के अगर अलग कर देगा एक सेल में, ये वाला सोचो खींच के अलग कर दिया तो कैसा दिखेगा, कैपिटल टी आर, कैपिटल टी आर, स्मॉल टी आर आर। ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इस सेल में गया है और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इस सेल में गया है। फिर इसका होमोलोगस ये इस सेल में पास चला गया और इसका होमोलोगस ये इसका होमोलोगस ये और इसका होमोलोगस ये इसमें चला गया। देखो फिर से होमोलोगस पेयर बनके जैसे था वैसे ही आया है। अब समझ में आया कैसे हुआ, और सब में ऐसे हुआ, इसमें भी ऐसे हुआ, इसमें भी ऐसे हुआ। समझ में आया तुमको? इजी है ये। हालांकि ये चीज तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है समझना, इम्पोर्टेंट नहीं है समझना। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सीबीएसई का भी सिलेबस के लिए। लेकिन हाँ, अगर ये पता है तो हम लोगों को यह समझ में आता है कि कैसे हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड, ये जो माइटोसिस का डिवीजन है ना, ये होता है 2n से 2n बताते हैं हम लोग, क्योंकि देखो पेयर में है और पेयर में ही आया है। अगर दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि पेयर में है तो पेयर में फिर से ये देखो सर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे सेम 2 कॉपी है, सेम 2 कॉपी है। कहाँ से आया? कॉपी करके आया, डीएनए रेप्लिकेशन करके आया। इतना आंसर काफी है क्लास 10 के लिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो इसको बोलते हैं 2n से 2n। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशनल डिवीजन। अब इसको मैं मिटाता हूं। जो मेन तुम लोगों को समझना चाहिए वो है रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस, क्योंकि मियोसिस से ही गैमेट्स, ये जो माइटोसिस है ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है, मतलब हमारे बॉडी के सेल्स में जब हम लोग ग्रो करते हैं। अगर तुम इसमें देखोगे सोचो फिर से सेम ही चीज है। सोचो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, और यहाँ पे स्मॉल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम है। इसका मतलब ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, ये है रिसेसिव एलील, ये है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील, है ना? इतना तो सिखाया था मैंने। मतलब ये टी वाला कैरेक्टर दिखाएगा, ये बड़ा आर वाला कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर दिखाएगा, और ये भी फेनोटाइप में जाके, मतलब ये तो जीनोटाइप से, फेनोटाइप में जाके ये टॉल ही दिखाएगा, ये फेनोटाइप में जाके सोचो राउंड ही दिखाएगा, ये फेनोटाइप में जाके सोचो ए जो कैरेक्टर दिखाता है उसका ए का रिसेसिव दिखाएगा, और यहाँ पे फेनोटाइप में जाके एम का डोमिनेंट ही दिखाएगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। एनीवे, तो ऐसे है। अब जब मियोसिस हो रहा है तब ना एक्चुअली तो समझना तो चाहिए 4 सेल से, फिर भी मैं समझा देता हूं 2 ही सेल से। मतलब एक चीज बता रहा हूं, ये जो सिखा रहा हूं ना, ये मतलब जस्ट सिंबॉलिक है, असल में ऐसे नहीं हो रहा है, जस्ट सिंबॉलिक है, समझने के लिए जस्ट इनफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारे क्लास 10 में समझने के लिए जस्ट इनफ है। अगर मैं असली प्रोसेस में भी घुसने का कोशिश करूं तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है,
फिर भी कुछ मेरे पुराने YouTube के वीडियोस है और चाहते हो तो शेयर कर दूंगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, ये जो दोनों होमोलोगस पेयर है ना, ये जो होमोलोगस पेयर है दोनों, इसमें से एक इस सेल में आएगा कैपिटल टी आर, दूसरा जो है इस सेल में आएगा स्मॉल टी आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक क्रोमोसोम उसमें गया, एक क्रोमोसोम इसमें गया, दो क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इज दिस क्लियर टू यू? आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब अगर, और जो ये है इसमें एक ए वाला क्रोमोसोम आएगा, दूसरा ए वाला क्रोमोसोम आएगा। अब तुम मेरे को एक क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे कि सर कि हमेशा फर्स्ट वाला क्रोमोसोम इस वाले सेल में गया तो सेकंड वाला क्रोमोसोम इस वाले सेल में गया, तो सेकंड जो होमोलोगस पेयर है इसका भी फर्स्ट वाला इसमें जाएगा और सेकंड वाला इसमें जाएगा क्या? नहीं, वो रैंडम होता है। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से फर्स्ट वाला इसमें गया है और तो जरूर डेफिनेटली सेकंड वाला दूसरे सेल में गया है। इन दोनों में से हो सकता है कि सेकंड वाला इसमें गया है और फर्स्ट वाला इसमें आया है, वो रैंडम है। ठीक है, इसी चीज को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। एनीवे, रैंडमली गया है। और इन दोनों में से हो सकता है कि फर्स्ट वाला इसमें चला जाए, यानी छोटा एम आएगा, और इसमें चला जाए। सर ये दोनों सेल्स में तो पेयर लॉस्ट ही हो गया। मतलब देखो ना सर, ऐसे पेयर में था, एलिल कहां है? यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हैप्लॉइड सेल्स है, हैप्लॉइड सेल्स में एलिल नहीं होता है। डिप्लॉइड सेल से 2n से n बना है। 2n का मतलब है डिप्लॉइड सेल। ठीक है, डिप्लॉइड सेल से n बना है, हैप्लॉइड सेल्स बना है। तो हैप्लॉइड सेल्स में तो नहीं होगा एलिल। समझ में आया? ये तुम्हारा स्पर्म है या ओवम है जो हैप्लॉइड है, यानी तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे फिर से 46 ड्रॉ करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर देता हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा दिमाग में हो जाए। एक बार ड्रॉ भी किया था। तो इसमें से जो एक्चुअली 4 स्पर्म्स फॉर्म होते हैं वो छोड़ो, चार के बाद छोड़ो, 2 ही देख लो। तो ये जो सोचो, ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, ये 5 डैश है, ये 6 डैश है, ये 7 डैश है। तो 1 डैश में से सोचो 1 डैश इसमें आया तो 1 डेफिनेटली इसमें आएगा। 2 डैश में से 2 इसमें आया तो डेफिनेटली 2 डैश इसमें आएगा। 3 डैश में से 3 डैश इसमें आया तो डेफिनेटली 3 इसमें आएगा। रैंडमली असॉर्ट होते होते हैप्लॉइड सेल्स बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? आया बात समझ में? तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे जो एलिल्स होंगे, सोचो एक एलिल है के, तो ये के एक सेल में आ जाएगा और ये के दूसरे सेल में आएगा। एलिल एक्चुअली होमोलोगस पेयर के यहाँ पे बैठा हुआ है और वो अलग होकर 2 सेल्स में चला जाएगा। ये सुन लो। इज दिस क्लियर टू यू? अंडरस्टूड और नॉट? मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली जब हैप्लॉइड सेल्स, अगर इसी चीज को मैं अगर एलिल के हिसाब से देखूं, सोचो एक एलिल है ए, ठीक है, और दूसरा उसके पास एक एलिल है टी, तो ये ए एक सेल में चला जाएगा और ये ए एक सेल में चला जाएगा, ये टी एक सेल में चला जाएगा और ये टी दूसरे गैमेट में चला जाएगा। इतना समझ में आया? गैमेट में एलिल ब्रेक हो जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? जो मैं वहां पे समझा दिया। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? हाँ, अब एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल अगर समझ में आ गया तो सोचो जेनेटिक्स हो गया, मेंडल सॉल्व हो गया। सोचो, जस्ट इमेजिन दैट, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। जो मैं बोलूंगा वही तुम 46 क्रोमोसोम्स के लिए सोच लेना। सिर्फ 46 करो। हर ह्यूमन में 46 होता है, अदर ऑर्गेनिजम्स में तो कम होता है। अच्छा, मेरे को क्वेश्चन का आंसर दो, किसी ऑर्गेनिज्म में ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा कभी? नहीं होगा। क्यों बोलते? क्योंकि हमेशा पेयर में रहना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बोलो तो कौन से ह्यूमंस का ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकता है? डाउन्स, हाँ, यस, पीपल हु आर ट्रांसजेंडर। ठीक है, उनका XY क्रोमोसोम ना टूट जाता है।
एक्चुअली एक चीज बताना मैं भूल गया तुम लोगों को, भूल नहीं गया। सोचो हम लोगों का 46 क्रोमोसोम्स है, तो 46 क्रोमोसोम्स में हम लोग 44 प्लस XX लिखते हैं लड़कियों के लिए, 44 प्लस XY लिखते हैं लड़कों के लिए। यानी क्या है, 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स होता है नॉर्मल, प्लस 1 पेयर जो है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये 22 पेयर्स को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। रिपीटिंग माय पॉइंट, इस 22 पेयर्स को क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। मतलब 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, और XX अगर है तो वो लड़की बन जाती है, और XY अगर है तो वो लड़का बन जाता है। रिपीटिंग माय पॉइंट। तो इससे सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, वो मैं बाद में आता हूं, पहले ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख लो। सोचो ये मेरा सेल है, ठीक है। ये सेल में मेरे पास 4 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स है मेरे पास? 4। अच्छा, मेरा टॉलनेस का जीन है स्मॉल टी क्योंकि मैं बौना हूं, ठीक है। तो मैं ये एलील कैरी करता हूं, होमोजाइगस रिसेसिव। मेरा आई कलर के लिए कैपिटल बी है, मतलब मैं ब्राउन हूं। अच्छा, मेरा ईयरलोब्स अटैच्ड नहीं है, यानी स्मॉल ए फ्री है ईयरलोब। तो कैपिटल बी ब्राउन आईज, स्मॉल टी सपोज शॉर्ट। ये जीनोटाइप है और ये फेनोटाइप है। ये जीनोटाइप है जो अंदर जीन्स है, और ये जो दिखेगा मेरे ऊपर जीनोटाइप की वजह से वो फेनोटाइप है। स्मॉल ए की वजह से मेरे पास फ्री ईयरलोब्स है, सॉरी अटैच्ड ईयरलोब्स है, जो कि रिसेसिव ट्रेट है। अगर मेरे पास कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो मेरा फ्री हो जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरा कैपिटल ए होता तो भी मेरा फ्री हो जाता। ये सब चीजें तो समझाया तुम लोगों को मैंने। अब ये तीनों पकड़ के रखो, ठीक है। अब सोचो कि मेरे जब स्पर्म्स फॉर्म होंगे तो एक सेल में बी चला जाएगा, एक सेल में बी चला जाएगा, दूसरे सेल में ए चला जाएगा, दूसरे सेल में ए चला जाएगा, एक सेल में टी चला जाएगा, एक सेल में टी चला जाएगा। ये समझ लो। ये मैंने थोड़ा आसानी से दिमाग इस्तेमाल करके मैंने ये एलिल्स लिए हैं। रिपीटिंग माय पॉइंट, इसीलिए इतने आसानी से दिख रहा है कि बी इसमें गया है तो दूसरा बी इसमें गया है। अगर ये वाला क्रोमोसोम इसमें गया है तो बी इसमें चला जाएगा, और ये वाला क्रोमोसोम इसमें है तो बी इसमें चला जाएगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें गया है तो स्मॉल टी इसमें आएगा ही, कैपिटल स्मॉल इसमें गया। सोचो ये मेरा है ना, माइन। सोचो ये किसी का ओवम है, किसका ओवम ले सकता हूँ? तुम्हारा मतलब ये है क्या, तुम खुद ट्रांसजेंडर हो क्या? लड़का को लड़की बता रहे हो? तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा क्रोमोसोम्स गया, मेरे स्पर्म्स है। कोई स्टैंडर्ड लड़की बताओ। मियां खलीफा स्टैंडर्ड लड़की। हाँ बहुत। तो सोचो यहाँ पे इसके पास स्मॉल बी कैपिटल बी है। हाँ, स्मॉल बी कैपिटल बी है, कैपिटल टी है, और कैपिटल ए है। यानी इसके क्या है, इसके हो गए तुम्हारे कैपिटल टी यानी वो टॉल है। इसके हो गए तुम्हारे कैपिटल स्मॉल बी, आई मीन कैपिटल बी स्मॉल बी। सोचो ब्लैक आईज है जो डोमिनेंट है, सॉरी ब्राउन आईज ही होंगे, सॉरी ब्लैक है
चुप कर। ब्राउन ब्राउन आइज होंगे, क्यों बोलते हो? ए आई एम नॉट इन अ मूड टू जोक। ब्राउन आइज ही होंगे, क्यों बोलते हो? क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कैपिटल बी रहने से ब्राउन होता है, तो बी बिकम्स द डोमिनेंट थिंग, राइट और रॉन्ग? नाउ इफ बी स्टेज विथ स्मॉल b, द डोमिनेंट विल ओनली शो, नो? So I have to draw brown eyes. Is this understood? And capital A, she will have free earlobes. Is this, yes, understood? Now let us take her. Now how many options of ovum will be there? Lots of options will be there. If you want to do for so many characters, lots of options will be there, because I am selecting 3 characters. No, but just an hypothetical example, as I said, just my wish that this chromosome will come in this cell. यानी ये वाला क्रोमोसोम अगर ये सेल में आएगा तो स्मॉल बी ही आएगा, ये सर ना। और ये वाला क्रोमोसोम अगर इस सेल में आएगा तो कैपिटल बी ही आएगा। अगर ये वाला क्रोमोसोम उस सेल में गया है तो कैपिटल टी ही जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे गया है तो कैपिटल टी ही जाएगा। और देख लेता हूं यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी। अब सिर्फ दो ऑप्शंस है, कौन सा स्पर्म कौन सा ओवम के साथ। ओवम सोचो जनरली वुमेन का क्या होता है, बाकी सब ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक ही ओवम वेट करता है। सोचो ये ओवम डिस्ट्रॉय हो गया है, ऐसा होता है, पोलर बॉडी बन के डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक ही वेट करता है। और स्पर्म भी तो एक ही सक्सेसफुल होता है इतने मिलियन स्पर्म्स में। सोचो वो वाला स्पर्म सक्सेसफुल हो गया, तो ये दोनों अगर फ्यूज करेगा तो देखो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड फ्यूज करने से जो जाइगोट बनेगा उसमें फिर से डिप्लॉइड बन जाएगा, लेकिन यहां से एक आएगा बी और वहां से आएगा स्मॉल बी, यहां से एक आएगा स्मॉल टी, वहां से एक आएगा कैपिटल टी, यहां से एक आएगा स्मॉल ए, वहां से एक। तो बच्चे का क्या कैरेक्टर्स आया, कैपिटल बी स्मॉल बी, ब्राउन आइज, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल, कैपिटल ए स्मॉल ए, फ्री एयरलोब्स। तो एक क्रोमोसोम माता का होता है, एक पिता का होता है, एक माता का होता है, एक पिता का होता है, और दोनों के मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं। ये है जेनेटिक्स। आया बात समझ में? इज दिस क्लियर? हाँ मयंक, क्लियर हुआ बात कि क्लियर नहीं हुआ? अंडरस्टूड, एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। अब ये समझ गए हो तो मेंडल समझना कोई बड़ी बात नहीं है। दो मुझे ये कपड़ा टुका है, मिटाओ तो ईशान, बोर्ड को मिटाओ लो। जनरली क्लास 10th लेवल में हम लोग आइदर देख, जनरली हम लोग क्लास 10 लेवल में मोनोहाइब्रिड क्रॉस सीखते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस भी सीखते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस पता नहीं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस को मैंने आते हुए देखा नहीं है, आता है मैंने बहुत कम। एनीवे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस सीखते हैं, और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस सीखने से पहले लोग मेंडल के बारे में सीख लेते हैं। एनीवे मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अबाउट द क्रॉस ऑफ वन कैरेक्टर, क्रॉस ऑफ वन कैरेक्टर मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को तुम क्रॉस करा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया, गैमेट्स मैच होकर सोमैटिक सेल्स बन गया, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली, एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस ऑफ टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। सर आपने जब ड्रॉ किया था तब तक 3 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किए थे, वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, वो मैंने सही से क्रॉस नहीं करवाया था, मैंने अपने मनमानी कर लिया था कि यही वाला स्पर्म आएगा, यही वाला ओवम आएगा, किया था ना, वो नहीं चल सकता है। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपको हर एक पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। Are you getting my point? सपोज सोचो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, एक प्लांट है जो तुमको पता है कि होमोजाइगस स्टॉल है, और दूसरा प्लांट है उसको फीमेल प्लांट, वो होमोजाइगस शॉर्ट है। ठीक है, तो मेरे को उतना सोचना ही नहीं है, होमोजाइगस टॉल प्लांट मतलब कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ
Homozygous short means small t small t. Homozygous short small t. Now when gametes will be formed, you have to understand this is the thing. Though you draw a Punnett square, this is a Punnett square. How to draw is that, sir, why did you draw 4? Because from the male, this is the symbol of male, suppose, and this is the symbol of female. You can ask me, sir, why this is the symbol of male and why this is the symbol of female? This is the symbol of male because this was signified as the arrow of the Zeus. Zeus, the Greek god, the symbol of manhood, male. Okay, and this is considered to be the mirror of Cleopatra. Okay, so that's why they use, biologists used to do. But I have my own way to remember this. Actually, this was taught to me by a class 10 girl only. Okay, means she remembered it in this way and she shared it in the class. She said in the class, sir, this I can remember in a very easy way. What? This is the symbol of male because ছেলেরা দেয়, মানে ছেলেদের body থেকে sperm বের হয়. She used this term only, ছেলেরা দেয়. Okay, মানে ছেলেদের body থেকে sperm বের হয়ে যায় আর মেয়েদের বডিতে implantation হয়, তাই জন্য প্লাস. No, I was impressed. She thought in that way. Anyway, so capital T अगर sperm अलग हो जाएगा तो ऐसे अलग हो जाएगा, right or wrong? और अगर ovum भी ऐसे अलग हो जाएगा, कौन सा ovum fuse करेगा मेरे को पता नहीं है. अब chances are it will become capital T small t, capital T small t, capital T small t, capital T small t. Means all the progeny plants, the chances are that all of them will be heterozygous tall. In case of plants or in Mendel's experiment, he did experiment with pea plants. In case of plants, there are multiple progenies. Multiple progenies means बहुत सारा प्लांट को क्रॉस करा के बहुत सारा प्लांट बना लिया था. और जब प्लांट को क्रॉस करा के बहुत सारा प्लांट बना लिया था, तो इन दैट केस, आज कितना तारीख है? क्रॉस करा के जब बहुत सारा प्लांट्स बना लिया था, तो वहां पे सारे आए थे. ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था. इज दिस क्लियर टू यू? उस हिसाब से मतलब उसने क्या किया, 2 प्लांट्स को क्रॉस कराया, उसमें से जो सीड्स निकले उस सीड्स को बो दिया और बोने से बहुत सारा प्लांट्स निकला. और जो बहुत सारा प्लांट्स निकला उसमें सारे प्लांट्स ऐसे थे. सर उसको इतना पता था एलील वेलील के चक्कर में नहीं. उसको मैंने तुम लोगों को जैसे पढ़ाया ना कि चलिए क्रोमोसोम में है, क्रोमोसोम के लोकस में है, जीन्स, ये सब बातें मेंडल को पता नहीं थी. इनफैक्ट इतना बता सकता हूँ, मेंडल इज द गॉड ऑफ जेनेटिक्स, इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. नॉट ओनली फादर, इज द गॉड ऑफ जेनेटिक्स. उसने अगर ये सिंप्लीफाइड नहीं किया होता तो आज हम लोग जब मेंडल का डेविएशन पढ़ते हैं या फिर जो भी जेनेटिक्स पढ़ते हैं वो इतने आसानी से पढ़ना पॉसिबल नहीं होता. लेकिन क्या तुम लोगों को पता है, मेंडल को कभी पता ही नहीं चला कि मेंडल ने इतना बड़ा काम करके गया है. मेंडल ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. वो खुद सोचा कि वो अंड शंड काम किया जिंदगी भर और उस डिप्रेशन में मर गया. बाद में his work started becoming recognizable. Okay, he tried to publish his work. He was actually a mathematician. Okay, but because of garibi, he could not pursue higher studies, and his father made him a monk. Because तब के दिनों में अगर आप monk बन जाओगे तो खाना पीना मिल जाएगा चर्च से, तो इसी वजह से उसको monk बना दिया था. ठीक है, लेकिन उसको वो इंटरेस्टेड था, तो उसने क्या किया था, जब देखा था कि ऐसे वेरिएशन और हेरिडिटी उसको स्टडी करना है, तो उसने सिलेक्ट किया पी प्लांट, कि मैं पी प्लांट के ऊपर सिलेक्ट करूंगा. रीजन नंबर 1 रीजन ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट इज दैट इट इज वेरी इजी टू ग्रोज इन स्मॉल स्पेस. इट इज अ पेरिनियल प्लांट. पेरिनियल प्लांट मीन्स ग्रोज ऑल थ्रू आउट द ईयर. पेरिनियल बोले ना एनुअल बोले, एनुअल तो जगह जगह है, पेरिनियल प्लांट बोला है. দেখে নিচ্ছি একটু এটা. পি ইজ আ পেরিনিয়াল প্ল্যান্ট, মানে পি গ্রোজ অল থ্রু আউট দ্য ইয়ার. টার্মিনোলজিটা একটু গুগলে দেখে নিস তো, পেরিনিয়াল বলে বা অ্যানুয়াল বলে, একটু লিখছি, ঠিক আছে. ইট গ্রোজ অল থ্রু আউট দ্য ইয়ার. ব্রিডিং টাইম ইজ ভেরি স্মল, মানে ছোট ছোট টাইমের মধ্যে রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে. তো রেজাল্ট লাগবে না, ও জেনেটিক স্টাডি করতে গেলে ও পেরেন্টসের ক্যারেক্টার দেখে তারপর বাচ্চার ক্যারেক্টার দেখবে. এবার যদি তো হিউম্যানের উপর করতে যেত বা এমন গাছের উপর করতে যেত 80 বছর পরে বাচ্চা দেয়,
তো ওই মরে যেত, ও তো রেজাল্ট পাইতো না। ওর কি লাগবে যে আমি ছোট ছোট টাইম স্প্যানের মধ্যে আমার বাচ্চা যাতে হয়ে যায়, গাছের বাচ্চা। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? গাছের যাতে প্রোজেনি চলে আসে, the progeny of the plants come. Are you getting my point? तो पी प्लांट यूज करने का तीसरा रीजन ये था कि पी प्लांट्स में फास्ट ग्रोइंग कैपेसिटी था। चौथा रीजन फ्री प्लांट यूज करने का ये था कि प्री प्लांट में हर एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिफाइंड थे और कोई मीडियोकर कैरेक्टर, मिक्स्ड कैरेक्टर नहीं था। आइदर इट इज वेरी टॉल और इट इज शॉर्ट एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। Either the flower is white or purple, contrasting character the. Either the seeds are green or yellow. Either the seeds are wrinkled or round. You observe this. Wrinkled होता है नहीं तो round होता है, yellow होता है तो नहीं तो green होता है, tall होता है नहीं तो short होता है, white flower होता है नहीं तो purple flower होता है। तो ये जो चीज उसने नोटिस किया कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ये उसको मदद, ये रीजंस है कि यूजिंग व्हाट टू से पी प्लांट्स। और एक रीजन है पी प्लांट्स यूज करने का कि इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सो क्या क्या रीजंस बोला मैंने? नंबर 1, इट ग्रोज इन अ वेरी शॉर्ट प्लेस। नंबर 2, इट ग्रोज फास्ट, reproduction rate is faster and reproduction time required is less. It then number 3, it grows all throughout the year. It grows all throughout the year so that he can obtain results all throughout the year. It has highly definable contrasting characters. Give examples there: tall, short, round, wrinkled, and yellow, green, blue, white flower, purple flower. 7 such characters he selected. We will talk about the 7 characters. And he did that. Are you getting my point? So 4th reason understood contrasting characters. And 5th reason is that it was bisexual flower. He needed bisexual flower. Because if it is unisexual flower, okay, pollen খুঁজতে যেত নাকি, pollen কোথায় আসিস মেল ফ্লাওয়ার থেকে, কঠিন হয়ে যেত না ওটা। বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার হলে ও কি করতো বলতো, একটা সিম্পল মেথড করতো যেটা এখানে করা যেত। ঠিক আছে, ও চায় যে আমি যখন চাবো তখনই রিপ্রোডাকশন হোক, কারণ ও তো ক্রস করাবে না। ও যদি দেখতে হয় যে এই ক্যারেক্টারের সাথে এই ক্যারেক্টার ক্রস করলে কি রেজাল্ট আসে, তাহলে ওর ইচ্ছা মতো ধর একটা টল প্ল্যান্টের সাথে একটা শর্ট প্ল্যান্টেও ক্রস করাবে। তাহলে তো চাবে না তো শর্ট শর্ট ক্রস হয়ে যাক নিজে নিজে, বা ও চায় যে একটা পার্পল ফ্লাওয়ার যে দিচ্ছে আর হোয়াইট ফ্লাওয়ার যে দিচ্ছে তারা ক্রস করবো। ঠিক আছে, তো চাবে না পার্পল আর হোয়াইট ক্রস হয়ে যাক নিজে নিজে। ঠিক আছে, বা সেলফ পলিনেশন হয়ে যাক। ও সেটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতো, এবং কন্ট্রোল করতে হলে বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার কেন লাগতো, কি করতো, স্ট্যামেন গুলা যে থাকে যেটার থেকে পোলেন বেরোয় পিস্টিলের উপর পড়বে, ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসের রিপ্রোডাকশন পড়ছিস নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, ফ্লাওয়ারের মধ্যে একটা পিস্টিল থাকে এরকম, তাই তো। স্টিগমা, স্টাইল, ওভারি। উপরের পার্টটাকে বলে স্টিগমা, এটাকে বলে স্টাইল, এটাকে বলে ওভারি। স্টিগমা, স্টাইল, ওভারি, এই গোটাটাকে একসাথে বলে হচ্ছে পিস্টিল। এবার এটা নিচ থেকে কি থাকে, বা এখান থেকে থাকে, যেখানে নিচ থেকে থাকুক যেখান থেকে থাকুক, এইটা হচ্ছে তোর স্টেমেন। এগুলোকে বলে হচ্ছে স্টেমেন। ঠিক আছে, স্টেমেনের দুটো পার্ট কি কি, একটা হচ্ছে অ্যান্থার আর একটা ফিলামেন্ট। থ্যাংক ইউ। উপরেরটা হচ্ছে অ্যান্থার আর এটা হচ্ছে ফিলামেন্ট। এবার অ্যান্থারের মধ্যে পোলেন গ্রেনস থাকে, এখানে পোলেন গ্রেনস থাকে। অ্যান্থারের মধ্যে এরকম পোলেন গ্রেনস থাকে। ঠিক আছে, তো এই পোলেন গ্রেনস ফেটে এটার মধ্যে পড়ে গেলে
এটাকে বলা হচ্ছে সেলফ পলিনেশন। বুঝতে পারলি? বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ, তো সেলফ পলিনেশন একটা, বুঝতে পারলি? আর আরেকটা হয় হচ্ছে অ্যান্থার পেটে অন্য ফুলের अनदर फूल का इसमें चला गया, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो समझ में आया? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, यू नो दिस थिंग्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे देख रहा है जैसे पहली बार सुन रहा है ये सब, ठीक है? तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस करके इधर आ गया। इज दिस क्लियर टू यू? मुझे एक बात बताओ, मेंडल क्या चाहेगा कि उसका चाहने वाला कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स वो क्रॉस कराना चाहता है वही क्रॉस कराएगा। हाँ, कभी कभी जरूरी है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन, सपोज वो कभी कभी कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सेम जेनेटिक फैक्टर्स को क्रॉस कराना चाहता है, तब वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करा देता था। और कभी कभी उसको क्रॉस पॉलिनेशन कराने का मन होता था, क्योंकि शायद इस प्लांट का है कैपिटल टी और इस प्लांट का है स्मॉल टी, तो क्रॉस ही तो कराना पड़ेगा। अगर ये खुद को सेल्फ बना दे, सेल्फ कर दे, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी हो जाएगा। मतलब सेम ही उसी फ्लावर के एंथर ने अगर उसी फ्लावर के ओवरी को फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है, तो उसी फ्लावर में तो सेम ही सब सेल्स में तो सेम ही कैरेक्टर्स रहेंगे, सेम ही जीन्स रहेंगे, सेम ही एनिमल्स रहेंगे ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाने का मतलब ये है कि कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि सेम ही तो जीन्स रहते हैं। हाँ, तुमको अगर अलग अलग करना चाहिए तो तुम चाहते हो कि कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी करूंगा, मतलब ये अलग, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम्स, मतलब कैरेक्टर ही अलग है, जैसे तुम और मैं अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मेंडल क्या करता था? एंथर्स को काट देता था, ठीक है, और इसको बटर पेपर से कवर कर देता था। इस चीज को कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। काट देने से क्या हो जाता था? ये खुद को सेल्फ पॉलिनेशन कर नहीं पाता था, फिर वो क्या करता था? दूसरे एंथर्स से पोलन निकाल के इसके ऊपर डाल देता था, ताकि वो कंट्रोल कर सके उसका रिप्रोडक्शन। And this is possible only if bisexual flower is there. That is why the fifth reason is that bisexual flower should be there. Got my point? Understood? So, what were Mendel's reason to select pea plant for his experiments to study genetics? Number one, it is a plant which grows throughout the year. Number two, it is a plant which grows in a very small area. It is a plant. Number three, it is a plant whose reproduction rate is very fast and he obtained fast results. Number four, it has defined contrasting characters like purple and white flower, like tall and short. Number five, it has bisexual flower. And number six, he could perform emasculation on these flowers because the androecium and the gynoecium are separate from each other. যদি অ্যান্ড্রোসিয়াম আর গাইনোসিয়াম যদি লেগে থাকতো আর ফুলের ভিতরে ঢুকে থাকতো তাহলে করতে পারতো? অ্যান্ড্রোসিয়াম মানে হচ্ছে মেল রিপ্রোডাক্টিভ পার্ট, গাইনোসিয়াম মানে হচ্ছে ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ পার্ট। Or you can easily write the pistil and the anthers were separate from each other and he could easily emasculate them. He could easily what them? কয়টা রিজন পড়ালাম? 6টা। তোদের বই কয়টা লেখা থাকে? 2টা না 3টা, তাই তো? মনে থাকবে এই 6টা রিজন? তো I will suggest যে 6টা রিজন why Mendel selected pea plant লিখে 6টা রিজন লিখে নাও, and that ends the class.